Some of the algae shows the asexual reproduction, whereas some of the algae shows the sexual reproduction. Means हमारे कुछ algae तो asexual reproduction दिखाते हैं और कुछ algae तो sexual reproduction दिखाते हैं. Asexual reproduction show by the Cyanophyceae. Basically, Cyanophyceae is a class of the algae. Cyanophyceae belongs to the class of the algae that shows the asexual reproduction. And the example is nostoc. Nostoc shows the colony formation. Second is sexual reproduction. Chlorophyceae. Chlorophyceae is belong to the class of the algae that shows the sexual reproduction. Example is Spirogyra, Ulothrix, Volvox and Chlamydomonas. These belongs to the class of the Chlorophyceae which show the sexual reproduction. Spirogyra, Ulothrix, Volvox and Chlamydomonas. Fungi. As I discussed above that there is the some classes of the algae which show the asexual reproduction and the some classes of algae shows the sexual reproduction. In the similar case fungi, some fungi shows the sexual reproduction whereas some fungi show the asexual reproduction. As we know that the fungi are divided into the 4 classes. जैसे हमें पता है कि फंजाई को 4 क्लासेस में बांटा गया है. फर्स्ट इज फाइकोमाइसिटीज, सेकंड इज एस्कोमाइसिटीज, थर्ड इज बेसिडियोमाइसिटीज, फोर्थ इज ड्यूटेरोमाइसिटीज. इन 4 क्लासेस में कौन सी क्लासेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करेगी और कौन सी क्लासेस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करेगी उसके बारे में हम पढ़ेंगे. जैसे फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज़ और बेसिडियोमाइसिटीज़ हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करती हैं. ये जो फंजाई की क्लासेस है फाइकोमाइसिटीज़, एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडियोमाइसिटीज़ ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करती हैं. फाइकोमाइसिटीज़ का एग्जांपल है रिजोपस, एस्कोमाइसिटीज़ का एग्जांपल है मॉशेला एंड पिजिया, बेसिडियोमाइसिटीज़ का एग्जांपल है एगैरिकस एंड गीस्टर. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सी फंजाई की क्लास दिखाती है? दैट इज द ड्यूटेरोमाइसाइट्स. ड्यूटेरोमाइसाइट्स बिलोंग टू द क्लास ऑफ द फंजाई विच शोज द asexual reproduction. Then the Deuteromycetes is also known as the fungi imperfect. Deuteromycetes को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसको हम बोलते हैं fungi imperfect. इसका एग्जाम्पल है Pycnidium and Phoma. Now come to the sexual reproduction. Sexual reproduction. What is a sexual reproduction? Two parents of opposite sex participate along with the fusion of female and male gamete to form the zygote and to form the new orgasm. हमें पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स की ज़रूरत होती है. देयर इज़ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द 2 पेरेंट्स टू परफॉर्म द sexual reproduction, and here is the mandatory case that 2 parents belong to the opposite sex. जो 2 पेरेंट्स होते हैं वो अपोजिट सेक्स के होने चाहिए. एक मेल होना चाहिए, एक फीमेल होना चाहिए. देन आफ्टर इट शोज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एक मेल और एक फीमेल, जब एक मेल और एक फीमेल क्वाइटस परफॉर्म करते हैं और जब उस क्वाइटस के दौरान मेल और फीमेल्स गैमेट्स की फ्यूजन्स होती हैं तो उसके बाद हमारा ज़ाइगोट फॉर्म होता है
एंड जाइगोट फॉर्म होने के बाद एक न्यू ऑर्गेनिजम्स बनता है. सो टू पेरेंट्स involvement to perform the sexual reproduction, and these two parents are belong to the opposite sex. One is male and another one is female. Second point is slow process. Sexual reproduction takes time. हमें पता है कि sexual reproduction बहुत टाइम लेता है. तो sexual reproduction is a slow process and it's take a time. First there is the fusions of the gametes, then after the formations of the gametes there is a formation of the zygote in the womb of the female, and it takes a 9-month process to form the fully organism. So it's a slow process basically, sexual reproduction, as compared to the asexual reproduction. Third point is because of the fusions of male and the female gamete, results in the offspring are not identical to their parents. जैसे कि हमने asexual reproduction में पढ़ा था कि asexual reproduction में तो जो offspring होते हैं वो अपने पेरेंट्स की बिल्कुल कॉपी होते हैं. यू कैन से ज़ेरॉक्स, हम उनको पहचान नहीं सकते. लेकिन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता. जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, वी आर नॉट द कॉपी ऑफ आवर पेरेंट्स. हम अपने पेरेंट्स की कॉपी नहीं हैं. हाँ, आई कलर हो या हेयर कलर हो या हाइट हो, दैट मे बी सिमिलर टू आवर पेरेंट्स बट नॉट ऑल द थिंग्स. हाँ, हमारी आँखों का कलर, बालों का कलर, हाइट वाइट हमारे पेरेंट्स से मिलती जुलती हो सकती है, लेकिन हम अपनी पेरेंट्स की कॉपी नहीं है. ऐसा क्यों नहीं होता? क्यों हम अपने पेरेंट्स की कॉपी नहीं है? Because of fusion of male and female gamete, results in offspring are not identical to their parents. क्योंकि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है. मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन की वजह से जो ऑफस्प्रिंग है वो अपने पेरेंट्स के आइडेंटिकल नहीं होता. मतलब जो ऑफस्प्रिंग है वो अपनी पेरेंट्स की कॉपी नहीं होता. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन ही नहीं होता, जिसके वजह से जो ऑफस्प्रिंग है वो पेरेंट्स की बिल्कुल कॉपी होते हैं. लेकिन हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है ना, जिसकी वजह से ऑफस्प्रिंग आर नॉट आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स. तो बिकॉज ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, रिजल्ट्स इन द ऑफस्प्रिंग आर नॉट आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स. Next one is fourth point. All the organisms have to reach stage of growth and maturity before they reproduce sexually. 4 point क्या है? सेक्सुअली किसी भी ऑर्गेनिजम्स को रिप्रोड्यूस करने पर एक ऑर्गेनिज्म को पहले तो बढ़ना होता है, ग्रोथ होनी होती है, फिर उसमें मैच्योरिटी आती है. देन आफ्टर दे आर फुली प्रिपेयर्ड टू रिप्रोड्यूस एनी ऑफस्प्रिंग. अब जैसे हमें देख लो, हम एक ऑफस्प्रिंग है. पहले हम एक छोटे बच्चे थे, नन्हे से बालक थे. देन आफ्टर हमारी लंबाई बढ़ी, हम ग्रोथ किए. उसके बाद हमारे में मैच्योरिटी चेंज आई. हमारी बॉडीज़ में, हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे चेंजेस आए जो हमें पता चलने लग गया कि अब हम टीनेजर एज में आ गए हैं या अब हम मैच्योर हो गए हैं. देन आफ्टर उसके बाद हम एक ऐसी स्टेज में आ जाएंगे कि हम सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं किसी एक ऑफस्प्रिंग को. Fourth point, all the organisms have to reach stage of growth and maturity before they reproduce sexually. Life cycle of an organism is divided into 3 phases. Life cycle, ये जो हमारा जीवन का चक्र है ना, ये 3 phases में डिवाइड हो रखा है. लाइफ साइकिल ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स डिवाइड इनटू 3 phases. हमारे ये जीवन का चक्र, एक ऑर्गेनिजम्स का पूरा जीवन का चक्र
3 फेज़ में डिवाइड हो रखा है। फर्स्ट है जुवेनिल और वेजिटेटिव फेज़ इन प्लांट्स। ह्यूमन में इस फेज को बोलते हैं हम जुवेनिल और प्लांट्स में बोलते हैं हम वेजिटेटिव फेज़। ये क्या होता है? द पीरियड ऑफ ग्रोथ। जब किसी भी ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ हो रही होती है उस पीरियड को हम जुवेनिल या वेजिटेटिव फेज़ कहते हैं। नेक्स्ट होता है रिप्रोडक्टिव फेज़, मीन्स द रिप्रोडक्टिव पीरियड। थर्ड होता है हमारा सेंसेट फेज़। सेंसेंट फेज़ होता है एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव पीरियड लीडिंग टू एजिंग। जब हमारी एज ज़्यादा हो जाती है तो हमारी रिप्रोडक्टिव पीरियड का एंड हो जाता है। इसका मतलब पता चलता है वी आर लीडिंग टू द डेथ। सो दीज आर द 3 phases ऑफ आवर लाइफ साइकिल। फर्स्ट इज जुवेनिल और वेजिटेटिव फेज़ इन प्लांट्स, मीन्स द पीरियड ऑफ ग्रोथ। Second is reproductive phase, means reproductive period. Third is senescent phase, means end of reproductive period leading to aging. Features of sexual reproduction. Sexual reproductions के features के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। Features of sexual reproductions. बेस्ड ऑन द सीजन्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। हमें पता है हमारे हायर लेवल्स ऑफ द प्लांट्स जो हैं, जो हायर क्लासेस ऑफ प्लांट्स हैं, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो करते हैं। हमारे पास ऐसे कुछ प्लांट्स हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं, और अगर हम प्लांट्स की थोड़ा हायर क्लासेस में जाते जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि जो हमारे प्लांट्स हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो करते हैं। तो बेस्ड ऑन द सीजन्स ऑफ द रिप्रोडक्शन इन द प्लांट्स, मौसम के हिसाब से हमारे पौधों में किस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, तो इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पहला है मोनोकार्पिक प्लांट, दूसरा है पॉलीकार्पिक प्लांट। मोनोकार्पिक प्लांट क्या होता है? फ्लावरिंग ओकर वंस इन देयर लाइफ साइकिल आफ्टर दे बियर फ्रूट एंड डाई। मोनोकार्पिक प्लांट वो प्लांट होते हैं जो अपनी लाइफ साइकिल में एक बार, जितनी भी उनकी लाइफ पीरियड होगा उसमें एक बार वो फूल देंगे और उसके बाद फ्रूट्स देंगे, जिसके बाद वो मर जाएंगे। एनुअल प्लांट्स लाइक राइस, व्हीट एक्सेट्रा। बाइनियल प्लांट्स लाइक रेडिश, henbane, etc. Annual plants are those plants requires the 1 year to bear the flower, fruit and then die. Biennial plants require the 2 years for flowering and bear the fruit and die. Annual plants को 1 साल का समय चाहिए होता है फ्लावर्स को उगने में, फ्रूट्स आने में, और देन आफ्टर दे डाई। बाइनियल प्लांट्स को 2 साल का समय चाहिए होता है किसी भी फ्लावर को ग्रो करने में, फ्रूट्स को ग्रो करने में, जिसके बाद वो मर जाते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं पॉलीकार्पिक प्लांट। पॉलीकार्पिक प्लांट मीन्स फ्लावर ओकर्स एवरी ईयर इन अ पर्टिकुलर सीजन आफ्टर रीचिंग मैच्योरिटी। पॉलीकार्पिक प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो हर साल फ्लावर देते, जो हर साल फ्रूट्स देते हैं, लेकिन उनका एक पर्टिकुलर सीज़न होता है। जैसे कोई प्लांट्स होंगे वो साल की गर्मियों में, जब भी साल की गर्मी आएगी या सर्दी आएगी तो तब फ्लावर्स देंगे, और उस फ्लावर्स के बाद पर्टिकुलर सीजन्स के बाद, उस पर्टिकुलर फ्लावर के बाद देन आफ्टर वो अगले साल उसी पर्टिकुलर सीजन्स में एक पर्टिकुलर फ्रूट्स ग्रोन होंगे, फ्लावर ग्रोन होंगे, देन आफ्टर रीचिंग द मेच्योरिटी। एग्जाम्पल हो गया पेरेनियल प्लांट्स। पेरेनियल प्लांट इज द एग्जाम्पल ऑफ पॉलीकार्पिक प्लांट।